Hello students and welcome to English class. I hope that you all are fine and enjoying your studies. Now today we are going to start chapter 2 Memories of a Visit from course book page number 11. So students, if I ask you that have you ever been to foreign countries or given a chance which country you would like to visit? Okay, so today I will take you to on a visit to a beautiful country, that is France. Okay, in this chapter the writer visits France and he is sharing his experience of visiting France. वहाँ जाके उसे फ्रांस के बारे में कुछ बहुत अच्छी बातें पता चली, वो ही एक्सपीरियंस राइटर हमसे शेयर करना चाहता है. So let's start. Look at these pictures and write the countries they represent. So here some pictures are given of some landmarks. Now you have to find out which landmark represent which country. So that is a task given to you. You have to do it. Okay. Now let's start the reading. It was the month of April, springtime in France, and the best time to visit. I was going to visit my cousin Supriya. सो इट वॉज़ द मंथ ऑफ अप्रैल एंड द मौसम क्या था वहाँ, स्प्रिंग टाइम, फ्रांस का. और स्प्रिंग टाइम जो होता है वो कहीं पर भी अगर हम विज़िट करें वो बहुत ही अच्छा होता है, बसंत ऋतु जो होती है. तो अगर उस मौसम में हम कहीं भी विज़िट पर जाते हैं, इट इज़ वो वेदर जो क्लाइमेट होता है वो बहुत अच्छा होता है. सो राइटर जब फ्रांस गया तो इट वॉज़ अ मंथ ऑफ अप्रैल एंड द सीज़न वॉज स्प्रिंग सीज़न एंड द बेस्ट टाइम टू विज़िट फ्रांस. सो अगर आपको फ्रांस विज़िट करना है तो अगर आप स्प्रिंग सीजन में जाओगे तो इट विल बी अ बेस्ट टाइम, यू विल एन्जॉय विजिटिंग फ्रांस. I was going to visit my cousin Supriya. So the writer was visiting his cousin Supriya, who was living in France. I left Mumbai at 4 a.m. and arrived in France by 7 a.m. French time. So the writer left from Mumbai at 4 a.m. 4 a.m. राइटर मुंबई से निकला और he reached the airport by 7 a.m. I landed at the Charles de Gaulle airport just outside Paris. So the name of the airport where writer reached in Paris is Charles de Gaulle. Okay, so where Supriya was already waiting for the writer to receive him. सुप्रिया वॉज देयर टू मीट मी. ओके, तो सुप्रिया वहाँ जो उसकी कज़िन है वो वहीं पर राइटर को रिसीव करने के लिए वहाँ पहले से मौजूद थी. वी गॉट इन टू अ टैक्सी एंड हेडेड टूवर्ड्स द पेरिस. सो द राइटर एंड हज कज़िन सुप्रिया they took a taxi and they forwarded towards the Paris. As we left the airport, I noticed there wasn't as much traffic as in Mumbai. So writer when they headed towards the Paris, जब राइटर पेरिस की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो राइटर ने ऑब्जर्व किया कि पेरिस में उतना क्राउड नहीं है जैसे कि मुंबई में. As we all know that Mumbai is very populated city and but compared to Mumbai, the crowd in Paris was very limited. There was not much crowd. As we left, I asked Supriya about France. So the writer started asking Supriya about France. It's about 1/4 the size of India with a tiny population, she said. तो सुप्रिया ने बताया कि इंडिया की जो एरिया है फ्रांस उसका 1/4 पार्ट है और उसकी जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत कम है, जैसे कि हमारे इंडिया इज़ वेरी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री. ओके, सो बट ऑन द अदर हैंड फ्रांस, द एरिया ऑफ फ्रांस इज़ वेरी limited and even the population is very limited. It is a country with tiny population. That means France is not crowded. There is plenty of room for everyone, I said jokingly. So the writer replied कि इसका मतलब ये हुआ कि फ्रांस में रहने के लिए बहुत जगह है, लोगों को इनफ जगह, घर, सब कुछ मिल जाता है रहने के लिए. The writer remarked it jokingly. Some large cities where there are factories are a bit crowded.
सुप्रिया ने बताया कि कुछ बड़ी सिटीज़ हैं फ्रांस में जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जहाँ इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह हैं, वो थोड़ी सी क्राउडेड है। बट द कंट्री हैज़ ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट पीपल नीड फॉर कंफर्टेबल एंड हैप्पी लाइफ। लेकिन मतलब लोग जितने भी हैं वो आराम से रह सकते हैं, उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें उन्हें आराम से वहाँ मिलती है। मतलब दे कैन लीड अ हैप्पी एंड comfortable life, not like India. India is very poor country because most of the population is of poor, consist of poor people. But in France, each and every person has the necessities like food, clothing, shelter. ये easily वहाँ पर लोगों को available है। The soil is rich and the sea borders much of France. तो जो वहाँ की मिट्टी है, हमें पता है कि जब हम फार्मिंग करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, या कोई भी चीज़ जब हम वी यूज़ फॉर प्लांटेशन, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ द सॉइल। सॉइल शुड बी रिच एंड इतना उपजाऊ होना चाहिए कि वहाँ प्लांटेशन या फार्मिंग अच्छे से की जा सके। बिकॉज हमें पता है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री डिपेंड्स अपॉन फार्मिंग, है ना। तो वहाँ की जो सॉइल है, मिट्टी है, वो बहुत अच्छी है, उपजाऊ है। एंड सी बॉर्डर्स मच ऑफ फ्रांस, और वहाँ बहुत अच्छे समुद्र है, समुद्र के किनारे हैं, तो वहाँ पे जो सी फूड्स हैं वो सब इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। सो देर आर प्लेंटी ऑफ गुड वेजिटेबल्स, फ्रूट, ग्रेन्स, मीट एंड फिश, शी रिप्लाइड। सुप्रिया ने साथ ही ये बताया कि क्योंकि वहाँ का सॉइल है, सी बॉर्डर्स है, जो भी पानी है, जो सोर्स है, जैसे सी फूड्स का जो सोर्स है या फ्रूट्स वेजिटेबल्स का जो भी सोर्स है वो बहुत अच्छा है। तो वहाँ पर वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ग्रेन्स, मीट, फिश जो सी फूड्स में आते हैं वो बहुत अच्छे वहाँ पर उनका प्रोडक्शन हो जाता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है वहाँ के लोगों के लिए। वॉट एल्स इज स्पेशल, आई आस्क्ड। सो राइटर को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था फ्रांस के बारे में जान के, तो उसने और भी इंटरेस्टिंग वे में पूछा कि और क्या स्पेशल है वहाँ पर। द फ्रेंच एल्प्स, ब्यूटिफुल स्नो कैप्ड माउंटेन्स दैट पीपल लव टू विजिट। सो आस पास के लोगों को वहाँ के एल्प्स, फ्रेंच एल्प्स आर द माउंटेन्स दैट आर कवर्ड विद स्नो। माउंटेन ऐसे लगता है जैसे उन्हें स्नो बर्फ़ की टोपियाँ पहना रखी हो, है ना। तो द पीपल लव टू विजिट दोज साइट्स, दे एन्जॉय लुकिंग एट दोज sites of the mountains. There are also rivers and plains with luscious grass for grazing animals. So वहाँ बहुत सारी नदियाँ भी हैं, प्लस प्लेन्स मतलब बड़े बड़े मैदान हैं जहाँ बहुत ही टेस्टी ग्रास अवेलेबल हो जाता है फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स। ग्रेजिंग मीन्स चरना, और कौन चरते हैं? एनिमल्स। सो देयर वी कैन फाइंड आउट अ टेस्टी ग्रास फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स। डेयरी फार्मिंग इज़ वेरी पॉपुलर बिकॉज द फ्रेंच लव चीज़। सो वहाँ मिल्क प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल में होता है क्योंकि वहाँ के लोगों को चीज़ बहुत पसंद है। चीज़ इज़ एसेंशियल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर डाइट। और कोई चीज़ हो ना हो, वो अपनी डाइट में चीज़ ज़रूर इंक्लूड करते हैं। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर डाइट्स। सो जो चीज़ है वो एसेंशियल मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर डाइट्स। They every time they eat, they include cheese in their diets. You will also find vineyards on sunny hillsides loaded with juicy grapes. वहाँ के जो वाइन यार्ड्स है, वाइन यार्ड्स मीन्स अंगूरों के बगीचे जो पहाड़ियों की तरफ है, वो भी वहाँ के बहुत पॉपुलर है। उनकी प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी होती है वहाँ पे। Most are harvested and pressed into wine, for which France is famous. So France is famous for its wine also, and these juicy grapes are harvested and pressed to for the production of wines. Wine is a kind of drink. And you already know about French fashion. France leads, the world follows. She laughed. So the Supriya replied in a laughing manner कि वहाँ का जो फैशन है, फैशन इंडस्ट्री है, वो भी बहुत पॉपुलर है।
एंड बिकॉज जो भी फैशन होता है वो सबसे पहले फ्रांस में ही इंट्रोड्यूस होता है और उसके बाद बाकी की कंट्रीज़ उसे फॉलो करती है। सो स्टूडेंट्स, टुडे आज हमने इतना जाना फ्रांस के बारे में। नेक्स्ट हम अदर पार्ट में, सेकंड पार्ट में और भी चीज़ों का हमें पता चलेगा कि फ्रांस की और क्या क्या स्पेशलिटी है। सो आई स्टॉप हियर। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट 10 डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम दिस पेज and write it in your notebook. Okay, that's all for today. Thank you.